Welcome, students. Welcome to another important lesson with respect to local government. In this lecture, we will discuss local government finance. It's how local government fulfill its financial stream. And as we know that effective any kind of effect management and especially effective financial management, it helps any organization to work and to perform better, and results would be more fruitful for any of the organization. And with respect to local government, it is utmost important for the smoother running of the local area or their respective area. Local government needs finance. So the dream of local ideal community, that is known as vision. We will discuss all these, and what would be the outline of our discussion. That would be first of all, we will introduce local finance. Then we will discuss financial management, and in financial management, we will discuss four. We will mention four important steps in financial management, and then we will discuss the budget preparation process, in which we will discuss the sources of income. And in sources of income, we will discuss the two important sources of local government, and then expenditure would be discussed in this phase of budget preparation. And after that, we will discuss financial annual cycle. In financial annual cycle, we will discuss planning and budgeting, implementing and spending, monitoring and spending, uh, and evaluating and spending. And before ending, we will conclude our whole discussion that how what the process of local government financing. So let's start. In introduction, as I have discussed that here I have mentioned that better place to live. It means that every individual, every organization, every area, and they need a better life. Means and effective financial management, effective sort of manage financial management. It helps municipalities, local areas to transform their local areas into a peaceful, a better place for living or to live. So for this, most of the councillors and members of that particular community know what municipal services they would like to have for their area. So they choose the best for their people, for their respective area. Uh, that this dream of effective or valuable services for that community or the ideal community is known as the vision. Vision for the municipality, vision for the local area. So the vision is here. It is important. Vision for the municipalities. So one of the councillors' greatest responsibility, one of uh, the man who is working for his area, is his greatest, his utmost responsibility is to manage and to monitor uh, his municipality's finance affairs, and provides money to implement the vision which he has for his community. So his effective way is to manage a good financial scheme for his to fulfill his vision for the
for his municipalities. So the this work should be done in but this work should be done in consultation with the local council for which he has been nominated, elected for that area. So the work should be done in consultation and cooperation with the local councils. उनकी मदद के बगैर ये काम नहीं होगा. So the community should be involved as much as possible in dealing with what should be the spending priorities for the areas they live in. यानी लोगों के लिए काम करेगा और उसकी कम्युनिटी को उसमें अ, उसको इन्वॉल्व करना है जितना ज़्यादा हो सके और ये डिसाइड करना है कि उन्हीं से डिसाइड करवाना है कि हमने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, हमने हमारी क्या तरजीहात हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं स्पेंडिंग के हवाले से अपने एरिया लोकल एरिया में. So for this, spending priorities. So local council should report in budget about programs. यानी the councillor and local council should report to council meeting. यानी अपनी वो मीटिंग में उसको क्या करना चाहिए, प्लान अपने बजट प्लान को वाज़ेह करना चाहिए और अपने लोकल एरिया के लोगों से कंसल्ट करना चाहिए अपने प्रोग्राम सॉरी और अपने बजट्स के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से. यानी लोकल काउंसिल अपने कामों के हवाले से, अपने प्रोग्राम के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, अपने रेजिडेंट्स से काउंसलर और लोकल काउंसिल कंसल्ट करेंगे काउंसिल मीटिंग में, उनसे पूछेंगे कि हमने क्या काम करने चाहिए, हमें हमारी तरजीहात तौजीहात क्या हो. सो ये मैंने लिखा हुआ है कि विदाउट फंड्स डिफिकल्ट फॉर काउंसलर्स, मतलब यानी विदाउट फंड काउंसलर के लिए अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करना, अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. यानी कम्युनिटी की खिदमत, कम्युनिटी को सर्व उस वक्त तक बेहतर नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास फंड ना हो और फंड ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हो. सो क्या है कि इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है. हमारा टॉपिक भी यही है कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस, यानी हम इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट की फाइनेंस कहाँ से आ रही है और अभी तो इंट्रोडक्शन है, यानी कहाँ से आती है, कैसे यूज़ करेंगे और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं. तो इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करवाती है कि यानी फंड्स अवेलेबल हैं और काउंसलर उनको इफेक्टिव पॉलिसी के तहत यूटिलाइज कर रहे हैं. सो द लोकल गवर्नमेंट्स और वी कैन से दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द money and to deliver the services for uh, the welfare of the community at large on day-to-day basis and every day we can say. यानी हर मतलब हर आदमी के लिए हर रोज़ उनके लिए आसानियाँ पैदा करना और उनको खिदमत यानी उनको सर्विसेज देना, उनको उनकी खिदमत करना और पैसों का ठीक यूटिलाइजेशन करना. सो काउंसलर्स, यानी हम कह सकते हैं कि काउंसलर्स, काउंसिल मेंबर्स और जो ऑफिशियल्स हैं, they all have the we can say the duty to ensure that the finances are managed carefully, ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली के साथ, यानी ऑनेस्टी के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पैसे ठीक इस्तेमाल हो रहे हैं. यानी ये सारे लोग यानी काउंसलर्स, काउंसिल मेंबर्स और ऑफिशियल जितने भी हैं ये देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि पैसे ठीक इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऑनेस्टी के साथ हो रहे हैं, केयरफुली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ की टू लोकल सर्विसेज डिलीवरी. यानी लोकल्स को अगर आपने डिलीवरी देनी है तो आपने फाइनेंस का हिसाब ठीक रखना है. सो गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक की है लोकल सर्विसेज की डिलीवरी के लिए. हम ये कह सकते हैं कि रेजिडेंट्स, काउंसिल मेंबर्स और काउंसलर
इनको इस बात का पता होना चाहिए दैट म्यूनसिपल फाइनेंस और जो बजट्स हैं, यानी यानी इन्हें म्यूनसिपल फाइनेंस और बजट का पता होना चाहिए, ताकि I can say that they can engage themselves in on the bigger debates about spending and development priorities. यानी हमने अपने एरिया में हमारे कामों की तरजीहात क्या हैं और कामों पर हमने रुपयों का, मालियत का, एक्सपेंडिचर का किस तरह से हमने करना है। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि हमने लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस का क्या फ़ायदा है और ये किस तरह से की जाती है, आगे हम देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दैट विच इज़ यूज्ड इन लोकल गवर्नमेंट। ठीक होगी बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि लोकल गवर्नमेंट में इस्तेमाल होता है और ये 4 ये स्टेप से गुजरता है। नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है कि पढ़ता हूँ, इट इज़ द वर्किंग आउट व्हाट इनकम द लोकल गवर्नमेंट, एलजी स्टैंड फॉर लोकल गवर्नमेंट, विल गेट एंड बैलेंसिंग दिस विद द प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान्स एंड फोरकास्ट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि अ, यानी ये काम करने का, यानी इट इज़ द वर्किंग आउट का क्या कर रहे हैं आप, व्हाट इनकम द लोकल गवर्नमेंट विल गेट, यानी काम करने से लोकल गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इनकम मिल रही है, एंड बैलेंसिंग दिस विद द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और जो उन्होंने साल के शुरू में जो बजट पेश किया था तो उससे मुताबिकत रखता है उनका काम, उनका फायदा। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग डिटेल प्लान्स एंड फोरकास्ट, यानी एक आप पूरे साल का एक पूरा प्लान चॉक आउट करते हैं और फिर कुछ फोरकास्ट भी कर रहे होते हैं कि हमारे फलां काम पर इतने खर्चे आएंगे, और कुछ बचत के लिए भी रख देते हैं, हंगामी हालात के लिए भी पैसे रख देते हैं, यानी तूफान है, बारिशें हैं, सैलाब है, जलजला है, जो भी, यानी ये फोरकास्ट में आ जाती है। या फिर आप एक फोरकास्ट तखमीना लगा देते हैं कि ये काम होगा और उस पर हमारा कितना खर्च होगा। तो ये एक प्लान है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पहले सबसे पहले आप ये करते हैं, देन इट इज क्या है, इट इज सेफगार्डिंग द इनकम, इट इज सेफगार्डिंग द इनकम, यानी ये आपके ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप कर रहे थे तो आप अपने लोकल गवर्नमेंट के पैसों को, इनकम को, जो आपको पूरे 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 आपके लोकल एरिया से, यूं समझ लें आपको अगर जिले की लोकल है तो अपने जिले से जो इनकम मिल रही है, मुख्तलिफ अहदाफ मिल रहे हैं, मंडियों के टोल टैक्स मुख्तलिफ जगहों से मिल रहे हैं, मार्केट्स के, और बहुत से ऐसे ऐसे इनकम के ज़राए होते हैं जहाँ से आपको मिल रही होती है। तो आपको यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या कर रहे होते हैं, उन उस इनकम को आप सेव कर रहे होते हैं, उस कैपिटल को, उस एसेट्स को, यानी ताकि उसका मिस यूज ना हो, वो डैमेज ना हो, लॉस ना हो या चोरी ना हो जाए। यानी आप एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा फ़ायदा ये है कि दूसरा बड़ा इसका स्टेप ये है कि आप इसको एक तरह से उस उन पैसों को आप एक ठीक तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और सबको सामने नज़र आ रहे होते हैं कितने पैसे इस साल के आए हैं, तो ये कहाँ-कहाँ खर्च होंगे। तो एक तरह से पैसे आपके सेफगार्ड हो जाते हैं। तीसरी बात, मॉनिटरिंग द एक्चुअल इनकम, आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट आ रही होती है, एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर भी, मैंने लिखा नहीं, आप अपने पास नोट कर लें। यानी आई कैन से दैट यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज द मॉनिटरिंग monitoring the actual income and expenditure in accordance with a budget passed through reporting and corrective actions, यानी आप एक तरह से एक्चुअल इनकम को और एक्सपेंडिचर को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कितने पैसे ज़िले को मिले हैं और कितने पैसे कहाँ-कहाँ खर्च हो रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा क्लियर हिसाब लगा के आपको उन्होंने पूरा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके में आपको पूरे ज़िले का या पूरे लोकल एरिया का या पूरे का पूरा, यानी सपोज़ कराची है तो उसको मुख्तलिफ लोकल एरिया में तक़सीम किया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे फाइनेंशियली मैनेज किया हुआ है दोनों चीज़ों को, एक्सपेंडिचर को भी और आपकी इनकम को भी, रेवेन्यू वगैरह को। नंबर 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चौथे स्टेप पर इसका यूज़ में ये है कि रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट, यानी
It is the reporting the financial results to all stakeholders by preparing financial statements is audited by the Auditor General. यानी ऑडिटर जनरल जो भी इसकी ऑडिट करेगा तो उसकी रिपोर्ट को फाइनेंशियल रिजल्ट्स की को रिपोर्ट करना पेश करना कि भाई ये इतने पैसे लगाए थे और इतने तो ये ऑडिटर जनरल स्पेशली ऑडिट डिपार्टमेंट ये काम करता है और इसके रिजल्ट्स को लोकल गवर्नमेंट के तमाम स्टेक होल्डर्स को पहुंचा दिया जाता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के आखिर में बनाई जाती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अवेज़ा कर दिए जाते हैं, वेबसाइट पर डाल दिए जाते हैं और स्टेक होल्डर्स को ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। सो द काउंसलर्स हैव द राइट टू डिस्कस, ask questions and make recommendations to the council on best ways to generate income and incur expenditure and safeguard the assets of the local government। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बड़ा फायदा है। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे है बजट प्रिपरेशन, यानी जाहिर सी बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है, लोकल फाइनेंस की बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंस की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने वो जिक्र किया। अब हम ये देखते हैं कि बजट प्रिपरेशन। सो लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर्स देयर बजट, अपना बजट तैयार करती है लोकल गवर्नमेंट खुद, और लोकल काउंसिल्स इसकी है अप्रूव्स इट, यानी बजट को अप्रूव करती है। अप्रूव्स बजट कब करती है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू फिस्कल ईयर, यानी नए जो फिस्कल ईयर है उसके स्टार्ट से पहले ही अप्रूव कर देती है लोकल काउंसिल बजट को। आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड कंसल्टेशन विद लोकल काउंसलर्स एंड स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स या लोकल काउंसलर्स होते हैं उनके साथ कंसल्टेशन मशवरा करने के बाद कि भाई ये हमारा बजट है और ये हमारे काम है, तो ये बजट मंजूर किया जाए, तो लोकल काउंसिल इसको यानी मैंने लिखा है एल काउंसिल, तो लोकल काउंसिल इसको अप्रूव करती है, लेकिन इन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हुए। सो बजट अप्रूवल आपको पता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि काउंसलर करते हैं। काउंसलर अपने इलाके के लिए ही बजट खुद ही मंजूर करवाते हैं। सो द कम्युनिटी मेंबर्स आल्सो हैव द राइट टू ऑब्जर्व द बजट मीटिंग ऑफ द लोकल काउंसिल। नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ये इनको हक है कि ये कम्युनिटी मेंबर्स उसकी मीटिंग में जाकर बैठ सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बजट मीटिंग को लोकल काउंसलर्स ऑफ लोकल काउंसिल्स। लोकल काउंसिल की बजट मीटिंग को कम्युनिटी मेंबर्स अटेंड करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसके बजट प्रिपरेशन में के बाद इसके वो देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं। तो सोर्सेज ऑफ इनकम ABC मैंने 3 लिखे हुए हैं और उसके बाद 1 2 3 ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि ये क्या है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम, the local governments must ensure that there will be adequate money to incur expenditure, यानी लोकल गवर्नमेंट ये इंश्योर करवाती है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी चीज पर इतना खर्चा कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर सोर्सेज ऑफ इनकम तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे कहीं किसी लेक्चर में आपने अटेंड किए हों, लेक्चर अटेंड किए तो आपको वहाँ से पता चलेगा, लेकिन यहाँ भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि सोर्सेज ऑफ इनकम एक ज़िली हुकूमत के पास या एक लोकल हुकूमत के पास रेवेन्यू कलेक्शन है, सर्विस चार्जेस हैं, रेट्स हैं, ग्रांट्स हैं, लोकल फंड है और प्रॉपर्टी टैक्स हैं। यानी रेवेन्यू कलेक्शन, यानी आप मुख्तलिफ जगहों से कलेक्शन कर रहे होते हैं। सर्विस चार्जेस, बहुत सी एरियाज पर लोकल गवर्नमेंट कहीं सर्विस चार्जेस की मद में पैसे ले रही होती है, कहीं रेट्स की मद में, कहीं ग्रांट्स की मद में, कहीं लोकल फंड की मद में और कहीं प्रॉपर्टी के टैक्स की मद में पैसे ले रही होती है। अब द लोकल गवर्नमेंट, वी कैन से दैट द लोकल गवर्नमेंट गेट देयर रेवेन्यू फ्रॉम दी 3 सोर्सेज, यानी अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल करें, इसके अलावा जो मैंने ऊपर बताएं, लोकल गवर्नमेंट के जो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने का, रेवेन्यू जनरेट करने के 3 बड़े सोर्सेज हैं। ABC मैंने लिखे हुए। पहला, नंबर 1 के they raise some of their own revenue by charging all people who own property
सच एज लैंड, हाउसेज एंड बिजनेस। यानी पहले नंबर पर दे रेज सम ऑफ देयर ओन रेवेन्यू बाय चार्जिंग ऑल पीपल हु ओन प्रॉपर्टी सच। यानी ये उन लोगों को चार्ज करते हैं जो कि जिनके पास जायदाद है, जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास घर हैं, जिनका बिजनेस है, और रेट लगाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर रेट लगाते हैं कि इतना है तो इतना, तो उससे लोकल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है पहले नंबर पर। दूसरा लिखा हुआ मैंने कहा the way they raise revenue by charging tariffs for services like water, electricity, refuse removal, and the use of municipal facilities like sports grounds, etc. यानी the second जो है the way they raise revenue by charging tariffs for यानी ये जो सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है उन पर टैरिफ उस मद में लगाती है और पैसे इकट्ठे करती है, जैसे पानी, जैसे बिजली, जैसे रिफ्यूजल या रिमूवल, ठीक है जी, एंड द यूज ऑफ म्यूनिसिपल फैसिलिटीज, जैसे कि म्यूनिसिपल का कोई ग्राउंड इस्तेमाल किया जा रहा है कोई इस तरह से, तो ये सारे पैसे इकट्ठे इस अंदाज में भी हो रहे होते हैं। तीसरा, some local governments raise uh, some local government raise virtually nothing and are almost dependent on the grants of state, province or central government। यानी कुछ लोकल गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं कुछ भी नहीं रेज कर रही होती हैं, और उनको सेंटर की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से या स्टेट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल रही होती है। तो ये तीसरा बड़ा सोर्स हो गया इनकम का। ठीक है, दो तरीकों से जनरेट की और तीसरे तरीके से इनको मिल रही है। अब तीसरा जो है, ये जो मैंने आखिर में आपको बताया है कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही है ग्रांट की फॉर्म में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंडिंग टू लोकल गवर्नमेंट्स इन टू वेज। तो यहाँ पर आप देखें तो मजीद सेंट्रल गवर्नमेंट मजीद इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी एक तो ये अंदाज हो गया, दूसरा ये अंदाज हो गया, तीसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल से मिल रही है तो उसके भी दो तरीके हैं, दो तरीकों से लोकल गवर्नमेंट को पैसे जो है वो मिल रही है। नंबर एक, पहला जो है वो इस तरह से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पढ़ लेता हूँ, द फर्स्ट इज थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एंड, यानी इसको हम इक्विटेबल शेयर एलोकेशन कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फंड देम बाय इक्विटेबल शेयर एलोकेशन, यानी विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम द नेशनल ट्रेजरी। हुकूमत के कौमी खजाने से लोकल गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाते हैं, और द अमाउंट ऑफ इक्विटेबल शेयर depends on a member of low income population, यानी जिस एरिया की ज़्यादा कम हो। सो द एलोकेशन इज meant to be used for basic services and operational cost, यानी बेसिक सर्विसेज के लिए वो पैसे, यानी बिजली नहीं है या पानी नहीं है या कोई बेसिक सर्विसेज नहीं मिल रही है शहरियों को, तो उस लोकल एरिया के लिए हुकूमत अपने खजाने से नेशनल ट्रेजरी से पैसे उनको देगी। ठीक होगी बात। दूसरा, सेकंड इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट, यानी मेग जिसे कहा जाता है, म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट। द लोकल गवर्नमेंट रिसीव्स फ्रॉम national government, it must be used to extend or maintain the infrastructure for the provision of basic services। यानी यहाँ पैसे मिल रहे हैं म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के हवाले से, और किस लिए द लोकल गवर्नमेंट रिसीव्स, जो नेशनल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, लेकिन किसके लिए मिल रहे हैं, या तो वो अपनी बेसिक सर्विसेज को एक्सटेंड करेगी या मेंटेन करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो पानी नहीं है तो पानी के लिए हैं उस लोकेलिटी में नहीं है, या बिजली नहीं है, या सैनिटेशन का निज़ाम नहीं है, तो एटसेट्रा, यानी और भी बहुत से हो सकते हैं। यानी ये बेसिक, मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक सर्विसेज अगर नहीं मिल रही हैं लोकेलिटी को, तो उस मकसद के लिए उसमें या ख़त्म हो गए हैं, या पाइपों का मसला है तो नए मिल रहे हैं, या और स्कीम और आबादी में इजाफा हो गया है तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को। समझ आ रही है? सोर्सेज ऑफ इनकम तीन ये, और फिर तीसरे में आप ये देखें कि तीसरे में भी दो अंदाज से उनको मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। तो
इसी में हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर आपके पास आता है एक्सपेंडिचर, यानी बजट प्रिपरेशन में आपने बजट प्रिपरेशन में इनका ख्याल रखना है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, सोर्सेज ऑफ इनकम हमने देखा है। अब हम ये देखते हैं कि हमने इस्तेमाल करना है। सो द लोकल गवर्नमेंट डिसाइड करती है द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट फंड ईच ईयर एज अ पार्ट ऑफ बजटिंग प्रोसेस एंड रिसेंट ईयर्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट फंड्स इंक्लूड्स। आजकल यानी किस लोकल फंड्स कि कहाँ-कहाँ खर्च होगा, इसमें क्या-क्या शामिल है। सो एक्सपेंडिचर यानी अखराजात, यानी खर्चा इनका क्या होगा और कहाँ-कहाँ ये अखराजात करेंगे, इसे हम देखते हैं जब बजट प्रिपरेशन होगी। सो अगेन मैं पढ़ता हूँ कि आजकल या पाकिस्तान की बात करें तो एक्सपेंडिचर के जो फंड में लोकल गवर्नमेंट फंड में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी किन-किन चीज़ों पर खर्चा करना है आपने। तो आप देखें पेमेंट टू दी लेज़र से मैं इस्तेमाल करूँगा, पेमेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स फॉर नॉन नेशनल रोड्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक होगी, पेमेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के महकमे पर आप अखराजात करेंगे, आप टूरिज्म पर अखराजात करेंगे एंड स्पोर्ट्स पर आपका होगा, एक्टिविटीज़ पर होगा फॉर नॉन नेशनल रोड्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक नेशनल हाईवे या एनएचए की रोड होती है, इन पर नहीं, आपकी लिंक रोड होंगी, आपकी लोकल सड़कें होंगी, उन पर आपके और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर आप कहाँ-कहाँ अखराजात कर रहे हैं। उसके लिए फंड मुख्तस करेंगे आप। उसके बाद फिर गवर्नमेंट अनाउंस करती है, टेंडर होता है और फिर इस तरह से एक पूरा प्रोसेस होता है। आगे नंबर 2, फॉर प्रोविजन ऑफ वाटर टू द लोकेलिटी, उस इलाके को पानी देना। आप ये आपका एक खर्चा है, आप उस एरिया को पानी नहीं मिल रहा है उस गाँव को या उस एक ख़ास महल्ले को या कोई ऐसा एरिया है, तो उसके लिए आप फंड उनका मुख्तस करेंगे। उसके लिए क्या प्लानिंग होगी, वाटर टैंक कहाँ बनाना है, पाइप कितने लगाने हैं, कितना खर्चा होगा और ट्यूबवेल का खर्चा कितना होगा और कहाँ लगाना है, कितना एरिया है, आबादी कितनी है, ये सारा बजट में एक्सपेंडिचर के हवाले से पानी का भी सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लोकल प्रॉपर्टी टैक्स एलोकेशंस टू लोकल अथॉरिटीज़, लोकल प्रॉपर्टी टैक्स लोकल प्रॉपर्टी टैक्स एलोकेशन टू लोकल अथॉरिटीज को अपनी लोकल ज़मीनों पर टैक्स, यानी उस उसका रेट उधर से ही मुकर्रर होगा। फंडिंग फॉर सर्टेन लोकल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए आपने एक्सपेंड फंडिंग करनी है। पेमेंट फॉर सैलरीज एंड सर्विसेज, स्टाफ के लिए पेमेंट, और पेमेंट फॉर एक्सक्योर के लिए भी आपने पेमेंट का इंतज़ाम करना है। तो ये एक्सपेंडिचर में आएगा। अ, और इसी में फाइनेंशियल एनुअल साइकिल, मैंने लिखा हुआ है फाइनेंशियल एनुअल साइकिल। फाइनेंशियल एनुअल साइकिल, द लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट हैज़ एन, उसका एक एनुअल, एक फाइनेंशियल एनुअल एक सालाना एक साइकिल होता है कि आपने शुरू करना है और फिर वहाँ खत्म करना है। डेट ये इंक्लूड्स, इसमें 4 बड़ी एक्टिविटीज़ आती हैं, यानी फाइनेंशियल एनुअल साइकिल में 4 बड़ी एक्टिविटी आती हैं। इट हैज़ 4 ब्रॉड एक्टिविटीज़, दीज़ आर इज़, नंबर 1, या कुछ भी कर दें आप, प्लानिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग एंड बजटिंग करते हैं आप। फिर इसके अलावा और भी आगे आने वाली हैं, तो मैं एक-एक करके यहीं से आपको डिफाइन भी कर रहा हूँ। प्लानिंग एंड बजटिंग है, इम्प्लीमेंटिंग एंड स्पेंडिंग है, मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज एंड स्पेंडिंग है। ये सारी आ रही हैं आगे-आगे, तो मैं यहीं से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्लानिंग एंड बजटिंग आपका फाइनेंशियल एनुअल साइकिल है, ये क्या चीज़ है। ये थोड़ा-सा डिटेल है लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा, क्योंकि अभी आपको 30 मिनट तो यहीं से आपके हो रहे हैं। एनी हाउ, हर साल लोकल गवर्नमेंट को रिक्वायर होता है टू रिव्यू देयर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी आईडीपीज के हवाले से एलजीआर, लोकल गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू रिव्यू देयर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड बजट। सो दिस प्रोसेस स्टार्ट, ये प्रोसेस हमेशा जून में स्टार्ट होता है, जून में स्टार्ट होता है हर साल बिफोर लोकल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट देयर आईडीपीज, यानी अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे साल का जब वो इम्प्लीमेंट करती है तो ये जून में अनाउंस करती है और स्पेंड करती है इट्स बजट ऑन सर्विसेज डिलीवरी, पूरे साल में काम करती रहती है और बजट को स्पेंड करती रहती है। और
ईच वन इज आउटलाइन एंड बजट में लिखा, यानी क्या कि द बजट इज द लोकल गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल प्लान एंड इंडिकेट्स हाउ मच मनी will go towards each of activities outlined in IDP's integrated development program. So budget should outline where the local body is getting its money from, how much it will receive, and how much it spend on the things like salaries, goods, services. यानी बजट में क्लियर कट ये होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस पर लग रहे हैं, कहाँ तनख्वाहों पर कितने लग रहे हैं, कितने रिसीव हुए हैं, कितने स्पेंड हुए हैं, और सैलरीज पर, सर्विसेज पर, गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स यहाँ पर तमाम जगहों पर यानी आपने क्या किया है. Spending on each area is mentioned also receiving will happen. ठीक है जी. अच्छा, प्लानिंग एंड बजटिंग यही मैंने आगे लिखा हुआ कंटिन्यूड, यानी वही चल रहा है कि यानी द लॉ रिक्वायर्स लोकल बॉडी टू कंसल्ट द कम्युनिटी व्हेन सेटिंग इट्स प्रायोरिटीज, developing its plans and allocating resources to priorities through the budget. यानी यहाँ डिमांड ये है, लॉ रिक्वायर करता है लोकल बॉडीज के हवाले से कि वो कम्युनिटी को कंसल्ट करेंगे कि जब वो कम्युनिटी के लिए प्रायोरिटी सेट कर रहे होंगे, अपना जो प्लान है उसको डेवलप करेंगे, अपने रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को बताएंगे कि हमने कहाँ लगाने हैं, अपनी प्रायोरिटीज को बजट के जरिए बताएंगे कि हमने ये पैसे कौन से एरिया में सर्व करने हैं. और नॉर्मली ये होता है, मैंने आगे लिखा हुआ है बुलेटिन नंबर 2 में, अगस्त एंड सितंबर इट कंसल्ट द कम्युनिटी. ठीक है जी, यानी अगस्त और सितंबर में हर साल में यानी बजट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले लोकल बॉडी मस्ट गेट इनपुट फ्रॉम कम्युनिटीज, यानी लोकल बॉडी ने अपनी कम्युनिटी से पूछना है, इनपुट लेना है कि हमने पैसे कहाँ किधर, on what they thinks of the services they are receiving and any changes in needs and expectation. और अगर कम्युनिटी की प्रायोरिटीज कुछ और हैं तो फिर उनको उनके मुताबिक चलना. ठीक है जी. नंबर 3 तीसरी इसी प्लानिंग एंड बजटिंग में है कि द लोकल बॉडी देन अमेंड्स इट्स, जब वो आ जाती हैं लोगों की बात तो फिर अपने लोकल बॉडी क्या करती है, अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी आईडीपी को उसमें तरमीम करती है और एक ड्राफ्ट बजट तैयार करती है. ठीक होगी बात, इन लोगों को मुतमईन कर लिया और उसके बाद आपने एक बजट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. जब ये हो जाता है तो फिर एक दफ़ा फिर लोकल बॉडी आपकी कम्युनिटी की तरफ जाती है, उनकी नीड्स को देखकर, उनकी रीजनेबल डिमांड्स को देखकर कि वो क्या आया, वो वाकई उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर वो उनकी ज़रूरियात वहाँ पर नहीं आ रही हैं, इफ़ देयर नीड्स आर नॉट मेट, तो क्या होता है, आईडीपी जो आप पूरे साल का बना रहे हैं एंड बजट में बी रिवाइज्ड, यानी उसको फिर रिवाइज किया जाता है. यानी मैंने लिखा था ना, देन अगेन इट कंसल्ट द कम्युनिटी की तरफ जाएंगे कि भाई आपकी ये चीज़ें हैं. अगर नहीं है तो देन आईडीपी इज रिवाइज, आपका वो पूरा का पूरा वो रिवाइज होगा. और ये काम आपका तकरीबन मार्च और अप्रैल के दरमियान में होता है, और यानी जून से पहले पहले, मार्च और अप्रैल के दरमियान में होता है. यानी फाइनेंशियल ईयर आपका जून में स्टार्ट होता है, तो जून से पहले पहले आपने ये करना है कि भाई हम ये करेंगे. सो दिस इज डन इन मार्च एंड अप्रैल बिफोर फाइनेंशियल ईयर इन जून. ठीक है जी. बैक में ही चलें, इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं कि आपने जो फाइनेंशियल एनुअल साइकिल की बात कर रहे थे कि प्लानिंग और बजटिंग आपने की है, अब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एंड स्पेंडिंग कर रहे हैं. सो यहाँ पर क्या होता है कि नाउ लोकल बॉडी स्टार्ट्स टू स्पेंड द मनी प्रोवाइडेड. जब आपने ऊपर बजट तैयार कर लिया था, लोगों की उसको फुलफिल किया है, तो अब आप इस पोजीशन में हैं कि अब आप उसको इम्प्लीमेंट करें. सो जब ये हो गया तो नाउ लोकल बॉडी इज इन अ पोजीशन टू स्पेंड द मनी यानी प्रोवाइडेड इन द बजट ऑन द एक्टिविटीज जो कि आपने आईडीपीज में आपने जो एक्टिविटीज आउटलाइन की थी कि इतना पैसे पानी पर लगेंगे, इतने पैसे बिजली पर लगेंगे, इतने सड़क पर लगेंगे, इतने स्ट्रीट लाइट पर लगेंगे, इतने मंडी बनाएंगे, इतना हम ये करेंगे, इतना ये करेंगे. सो अब आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन पर आ गए, एक्टिविटीज यानी आप करेंगे. सो इट क्या मैं ये कहूँ कि
आगे मैंने लिखा ना सेकंड बुलेट में कि इट पेज सैलरीज एंड सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर्स it they buy goods needed to deliver services, buys and maintains machinery and equipment and develops and maintain infrastructure, यानी ये सारे काम वो करती है लोकल बॉडी आपकी। सो ये प्रोसेस आपका जून में स्टार्ट होता है और अगले साल मई में जाकर खत्म हो जाता है, यानी पूरा साल जून में स्टार्ट हो गया आपका काम इम्प्लीमेंटेशन का और कब जाकर खत्म होता है, जून से पहले पहले मई में खत्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स दैट वन कैन यूज these documents to monitor the local bodies' progress in delivering on these promises, or one can go to the project sits and check that services and infrastructure are being delivered and on demand that his counselor provides, यानी आप जाकर चेक भी कर सकते हैं और मालूम भी कर सकते हैं कि भाई वाकई वो चीजें वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी एविडेंस फ्रॉम द काउंसलर फॉर हिज सर्विसेज। और आगे है कि इफ रेजिडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाई गो फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी उसकी इफ आईडीपी एंड बजट शो दैट दैट द लोकल बॉडी प्लान्स टू एक्सटेंड वाटर पाइप टू द टाउन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वाटर पाइप का मसला था तो टाउनशिप बहुत साल दिया गया, तो एक आदमी जाकर चेक कर सकता है उस जगह पर वाकई वो पाइप लगाए हैं नहीं लगाए, वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, कंप्लीट हो रहा है कब हो रहा है। और फिर आप देखें कि काम खत्म करने के बाद वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है तखमीना लागत और फिर स्टार्ट कब किया था और ख़त्म कब हुआ है, और नीचे पैसे तखमीना लागत लिखी हुई होती है और ये सारा कुछ उस प्रोजेक्ट का बाकायदा से मेंशन होता है। आप अपने पाकिस्तान में हम अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर ये चीज़ें देख सकते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट अब इसको पेश कर रही होती हैं, लेकिन एनी हाउ ये जॉब होती है लोकल गवर्नमेंट की। So this is to ensure that the correct processes were pursued और contract और फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अवार्ड हुआ है, जस्ट पॉलिटिकल कनेक्शंस हुए हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस तो होते हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर लोग सेटिस्फाई ना हो तो फिर वो अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई रेजिडेंट्स उस एरिया के अपनी उस चीज़ की के लिए उनके पास डिमांड का वो हक हासिल होता है उनको। और लोग आल्सो यानी किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग और स्पेंडिंग के हवाले से अपने लोकल। ठीक होगी। दूसरी बात, तीसरे नंबर पर आते हैं हम उसी साइकिल में, जो साइकिल की बात कर रहे थे ना, फाइनेंशियल एनुअल साइकिल के हमने पहले बनाया फिर किया इम्प्लीमेंट किया, अब हम मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड स्पेंडिंग। मॉनिटरिंग एंड स्पेंडिंग आप किस तरह से कि हम ये इंश्योर करते हैं in order to ensure that it is delivering on IDPs and that is spending its budget as it should, the local authorities must be carefully monitor its activities and spending। और बड़े एक उसको मॉनिटर करनी है लोकल अथॉरिटी को सारे कामों को। इसके लिए लोकल बॉडी के पास ऐसा सिस्टम हो, ऐसा ट्रैक सिस्टम हो सैलरीज को ट्रैक करने का और तमाम चीज़ों को, परचेज ऑफ गुड्स को और पेमेंट्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर्स को और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को, सारा एक इंतज़ाम मॉनिटरिंग का होना चाहिए कि भाई काम हो रहा है, सही हो रहा है, स्पेंडिंग ठीक हो रही है, पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। Local body must also physically verify that services are being delivered and infrastructure is being developed in line with the set norms and standards। जिस यानी लोकल बॉडी ने ये देखना है कि भाई जिस काम के लिए वो किया था वो क्या ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। नॉर्मली कोई करता नहीं है, लेकिन चेक करना चाहिए और लोगों को उसके ऊपर करना चाहिए, बात करनी चाहिए। The local body is required to develop monthly and quarterly financial statement as well as quarterly services delivery report और fund services delivery और monthly और quarterly financial statement, ये सारी दी जाती है। ठीक है जी। आगे आगे इसका चौथा हम देखते हैं कि evaluating and spending और साइकिल की। evaluating and spending ये है कि साल के आखिर में, यानी आपको मैंने मई का और जून का वो बताया था, ठीक है जी। तो द लोकल बॉडी मस्ट लुक बैक ओवर द ईयर, पूरे अपने पिछले गुज़श्ता पूरे साल पर नजर चढ़ाती है
और एसेस करती है कि वो आईडीपीज की जो आपने जो शुरू में जो प्लान की थी तो क्या वो सर्विसेज, वो पैसे, वो बजट ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और लोकल बॉडी को क्या करना चाहिए कि अपना उस सारी चीज़ों को पब्लिश करवाना चाहिए, उसका रिव्यू करना चाहिए, उसकी एनुअल रिपोर्ट को जनवरी में, और ये हर साल जनवरी में करती है कि हमने ऐसे किया है। और हर लोकल बॉडी इसके पास इसकी एक ऑडिट कमेटी होती है जो कि एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ फाइनेंसेस करती है। ऑडिट कमेटीज की जो है, इट मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी ऑडिट कमेटी में जो लोग होंगे वो उसके नहीं हों बल्कि बाहर के हों। ठीक है ना, कमेटी मेंबर्स शुड बी एक्सटर्नल, मैंने लिखा हुआ है। यानी ये नहीं है अंदर से आपने कमेटी के मेंबर ले लिए ऑडिट कर रही है, नहीं, बल्कि वो यानी अनबायस्ड हों, न्यूट्रल हों बाहर से। ठीक है जी। और इंश्योर दैट द कमेटी यानी कि इंडिपेंडेंट है और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहिए। यानी इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू फाइंड आउट हु इज ऑन द ऑडिट कमेटी, हाउ ऑफन दे मीट एंड व्हाट देयर रिस्पांसिबिलिटीज आर। सो ऑडिटर जनरल मैंने आगे लिखा हुआ है, यानी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक जो हैं तो उसमें ऑडिटर जनरल है। यानी ये ऑडिट करता है लोकल बॉडीज फॉर स्पेंडिंग और परफॉर्मेंस इन डिलीवरिंग सर्विसेज। और द ऑडिटर जनरल प्रोड्यूस ए रिपोर्ट which must be appeared in annual report of the body। ठीक होगी बात। और एवेल्युएशन ऑफ स्पेंडिंग जो कि आपने लोकल एरिया में हुई है, आईडीपीज को जो सामने रखते हुए, और सर्विसेज डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस दे टेल दी लोकल गवर्नमेंट व्हाट दे हैव डन वेल और पिछले पूरे साल में, और कुछ कौन सा किया है और कौन सा नहीं किया है, कौन से टारगेट्स को अचीव किया और कौन से को नहीं कर सके और कौन से को आगे करेंगे। सो दे फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ फ्यूचर अमेंडमेंट्स ऑफ आईडीपीज को आप फिर उसकी बेस पर चेंज भी करते हैं, और अगले साल आप जो बजट में उन आईडीपीज को सामने रखते हुए आप बजट तैयार करते हैं और बजट का एक पूरा हिसाब रखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। सो ये एवेल्युएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के हवाले से। नॉर्मली क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब फुलफिल नहीं कर रही होती तो इट शुड यानी ऐसा होना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट आगे प्रोविंशियल यानी या स्टेट गवर्नमेंट को जानी चाहिए। यानी इफ एलजी इज नॉट इन कमिटमेंट्स देन रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जानी चाहिए। ठीक है जी। एवेल्युएटिंग और स्पेंडिंग गवर्नमेंट के हवाले से फिर आगे 2-4 बातें और के इवन टू द नेशनल गवर्नमेंट को जानी चाहिए उनकी नेग्लिजेंस के हवाले से, और इस तरह से इट कैन इम्पोज अ रिकवरी प्लान, और वो उस लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक रिकवरी प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है या करना चाहिए। ये मैंने लिखा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज अ रिकवरी प्लान, तो वो कुछ इस अंदाज से होगा, ये 1 2 3 4। नंबर 1 कि असेसिंग द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड द लोकल बॉडीज फाइनेंशियल पोजीशन, यानी भाई लोकल बॉडी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पैसे कहाँ सही तरीके से इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजीज टू डील विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट वीकनेसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमजोरियों को सामने लाना चाहिए कि पैसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सके और ये इस तरह से हुआ है। ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज necessary to implement these strategies and where these resources should come from, यानी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और क्यों कम आ रहे हैं, या क्यों किस तरह से इनका मिस यूज हुआ है और किस तरह से, तो इसकी एक आइडेंटिफाई करना चाहिए उन रिसोर्सेज को। और सेटिंग आउट टाइम फ्रेम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकवरी प्लान का एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर लोकल गवर्नमेंट रिफ्यूज करती है टू एक्सेप्ट द प्लान, और इफ it cannot implement the plan, the provincial government can dissolve the local government and can held the fresh election, और एक नई बॉडी आनी चाहिए और नई लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए कि भाई उन्होंने ऐसा डिलीवर नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अगर if this fails to bring about necessary improvements, the national government can also intervene and administer the local governments until new elections are held। यानी ये पाकिस्तान की बात करते हैं हम कि ऐसा कि नए इलेक्शन हो और नई बॉडी आए और इस तरह। आखिर में इसको सम अप करता हूँ मैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कि कंक्लूजन में ये है कि मैं ये कहूँ कि कुछ की रूल्स हैं
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से और बजटिंग के हवाले से लोकल गवर्नमेंट की, कि वो क्या है कि नंबर एक, पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व सेटिंग एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज इन टाइम विद पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड देन allocating the available resources in line with those priorities. ठीक है जी। और द पॉलिसी मेकिंग रोल जो है आल्सो इन्वॉल्व चॉइसेस अबाउट लोकल टैक्स रेट्स टुगेदर विद टैरिफ्स फॉर फीस और चार्जेस वगैरह, सो एज टू जनरेट यानी सफिशिएंट रिसोर्सेज यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर के मुताबिक हो जाने चाहिए। नंबर दो, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी यूज्ड एज अ मैनेजमेंट टूल, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपकी मैनेजमेंट ना हो तो आपकी लोकल जो आपकी गवर्नमेंट है वो एक उसके पास इफेक्टिव टूल नहीं होगा अपने पैसों को इस्तेमाल करने का, और मैनेजरियल वीकनेसेस आएंगी। और मैनेजमेंट यानी ये एक मैनेजरियल टूल है, यानी किस लिए, यानी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द मैनेजर्स ऑफ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, हैं जो आपने वो किए थे आईडीपीज में, टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स डिलीवर वैल्यू फॉर money and monitor revenue and expenditure performance during this year। और तीसरा ये है कि इसको खत्म करते हैं कि इट कैन बी, यानी थर्डली इट कैन बी मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल थ्रू द ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, प्रिवेंशन ऑफ अबव एंड सॉरी, यानी आप अब्यूज और फ्रॉड को प्रिवेंट करते हैं एंड इंश्योर सोलेमनरी बाय प्रिवेंटिंग फिस्कल डेफिसिट, और आइंदा आपको नुकसान ना और खसारे में आप ना जाएं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं इसको आखिर में एवेल्युएट नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा हो गया। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस, जिसमें हमने तमाम उन एरियाज़ को देखा कि किस तरह से हमने प्लान करना है, बजट कैसे तैयार करना है, हमारे पास इनकम के सोर्सेज कौन-कौन से हैं, हमने एक्सपेंडिचर का हमने कहाँ करना है, और सबसे बढ़कर ये है कि हमने फाइनेंशियल एनुअल साइकिल को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने प्लानिंग कैसे करनी है, आईडीपीज़ का ज़िक्र हुआ, फिर हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको स्पेंडिंग कैसे करनी है, उसको हमने फिर मॉनिटर भी करना है, और आखिर में हमने उसको इवैल्यूएट भी करना है, यानी ऑडिट वगैरह भी करना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। मैं आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।